السلام علیکم، میں خسرا بات کر رہی ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خبیب اینڈ محمد ولاگ کا پھر سے کے بعد جو ہے وہ میں ولاگنگ کر رہی ہوں. میں کہیں مصروف تھی اپنے ہی کاموں میں اور کوئی اتنی بھی مصروفیت نہیں تھی کہ ولاگ نہ بنا سکوں. بس دل ہی نہیں چاہتا تھا، دل کرتا ہی نہیں تھا ولاگ بنانے کو. اسپیڈوں کا کرتے 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 اتنا ٹائم لگ گیا. حالانکہ ولاگ بنا ہوا تھا، جسٹ میں نے اس کو اپلوڈ کرنا تھا اور ایک تو بلکہ میں نے چھوڑ ہی دیا. وہ میں شاید کل اس کے اوپر کر لوں اور پھر بائی بائی کروں، کیونکہ اس کو کلوز بھی تو کرنا ہے نا جو شروع کیا تھا اسپیڈوں کا. تو اسی طرح سے کرتے 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 یہ دن آ گیا اور میں ولاگنگ جو ہے وہ نہیں کر سکی. کچھ میرا دل ہی نہیں کرتا تھا ولاگ کرنے کو، یقین کریں. ورنہ میں تو کوشش کرتی تھی لازمی ہر روز ایک نہ ایک ولاگ جو ہے اپلوڈ کروں. بہرحال کرتے کرتے یہ دن آ گیا. تو آج کا جو ولاگ ہے یہ خاص وجہ ہے، ایک خاص شخصیت کے لیے میں بنا رہی ہوں. اور وہ جو شخصیت ہے وہ بڑی پیاری شخصیت ہے، آپ سب جانتے ہیں. ہماری بہت پیاری بشریٰ انصاری صاحبہ جو جب آتی تھی ٹی وی پہ یا آتی ہے جیسے مسز چودھری بنی تھی تو ایک خوشگوار سی جو مسکراہٹ وہ سب کے چہروں پہ آ جاتی تھی اور وہ کیریکٹر ان کا بہت اچھا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میرے ابو جو ہیں، میرے ابو ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، دین کی طرف زیادہ دھیان تھا. مطلب کبھی کبھی دیکھ لیتے تھے لیکن ڈرامے شامے نہیں، جسٹ خبریں دیکھتے تھے. تو لیکن بشریٰ انصاری صاحبہ کا جب بجلی بنی تھی نا، میرے ابو اتنا ہنستے تھے، اتنے خوش ہوتے تھے، اتنے خوش ہوتے تھے. اور ان کا معین اختر صاحب کے ساتھ جو پروگرام آتا تو اگر ابو کو پتہ چلتا کہ بشریٰ انصاری صاحبہ کر رہی ہے تو ابا جی جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے اور آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے. ابو کو 7 ایئرس ہو گئے ہیں، اللہ سے ملے ہوئے، ہم سے دور ہوئے ہوئے. اللہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. تو ایسی وہ شخصیت ہے بشریٰ انصاری. اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، اللہ نے ایک بڑا مقام دیا ہے، بڑی نائس لیڈی ہے. وہ ایک ماں بھی ہے، وہ ایک بہن بھی ہے، وہ کسی کی بیٹی بھی ہے، وہ کسی کی بیوی بھی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کرنا جو بڑا ایک چل رہا تھا، بڑا ٹرول کیا لوگوں نے ان کو. بشریٰ انصاری نے شادی کر لی، اس عمر میں شادی کر لی. کیا مطلب ہے اس عمر میں شادی کر لی؟ بھائی وہ جس عمر میں بھی شادی کرے وہ ان کی عمر ہے اور ان کی ذاتی زندگی ہے. اس کے اوپر ہمیں، مجھے، اس کو فلاں کا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا اور کسی کو حق نہیں پہنچتا میری زندگی میں. اگر میں کچھ ایسا کروں تو میری زندگی میں کوئی میرے بارے میں کوئی انگلیاں اٹھائے. بھائی وہ شادی کرے چاہے 60 سال کی عمر میں تو چاہے 40 سال کی عمر میں، چاہے وہ 80 سال کی عمر میں کرے، چاہے وہ 20 سال کی عمر میں کرے. یہ ان کا اپنا پرسنل ہے، انتہائی پرسنل ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہماری یہ تربیت ہوئی ہے. اس سے کیا میسج کیا جاتا ہے کہ ہماری یہ تربیت ہوئی ہے کہ ہم نے بڑوں کی عزتیں اچھال دینی ہے. یار وہ ایک باعزت خاتون ہے، وہ بہت اچھی لیڈی ہے، وہ فنکارہ ہے، آرٹسٹ ہے، وہ بہت اچھا کام کرتی ہے. وہ اداس چہروں کے اوپر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے. سائمہ چودھری وہ بنی، ٹھیک ہے جی، اور بجلی بنی. اور اس کے علاوہ بہت سارے ہم ان کے اگر پرانے نکال کے دیکھیں تو وہ بھی، اور نئے دیکھیں تو کہیں کہیں سے زندگی والے بھی ہیں ان کے کیریکٹر. تو کیا ہمیں ایسا کوئی حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں ایسی باتیں کر کے؟ دیکھیں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں پرسنلی یہاں میرے آس پاس، جو اولڈ ایج ہو چکے ہیں، جن کی کافی ایج ہو گئی ہے اور ان کے ہسبینڈس نے ان کو ڈیورس کر دی ہے. لیکن وہ اپنے خاوند کو کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی ظاہر ہے اس گھر میں، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ اسی گھر میں ایک کمرے میں رہتی ہیں. اب وہ بشریٰ انصاری صاحبہ کی طرح اتنی مشہور نہیں ہے، کسی نے ان کو ٹرول نہیں کیا، کسی نے ان کے بارے میں کوئی باتیں نہیں کی، کسی نے ادھر ادھر سے وہ فلانا ڈمکانا، یوٹیوبر وہ چینل والا وہ فلانا، کسی نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ کوئی ان کو جانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری بات جو ہے کہ جی چلے ٹھیک ہے، جانتا ہے نہیں جانتا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ اگر ان کے بارے میں بات کرے یا میرے بارے میں ایسی بات کرے یا آپ کے بارے میں کرے تو کتنا برا لگے گا. اس بات سے میسج کیا جاتا ہے؟ صرف یہی جاتا ہے کہ جی ہماری تربیت دیکھ لیں کیسی ہوئی ہے، کہ ہم ماں جتنی عمر کی عورت کی بھی بےزتی کریں گے، چھوٹی عمر کی بھی کریں گے، بہن جتنی بھی اور بیٹیوں جتنی عمر کی عورتوں کی بھی ہم بےزتی کریں گے. وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ہم ان کی انسلٹ کر کے رکھ دیں گے، دھجیاں بکھیر دیں گے. لیکن کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی کا دل دکھانا کتنی بری بات ہے؟ تربیت نام کی تو چیز کوئی نہیں نا ہمارے اندر. چند ڈالر کے لیے، چند ڈالرز کے لیے، اچھا میں اگر بنا لوں، فرض کیا میں نے یہ ویڈیو بنا لی، بشریٰ انصاری کی 60 سال میں شادی، فلانا ڈمکانا،
अब मुझे उससे चले ठीक है जी 5 लाख आ गए मेरे उसमें व्यूज, कितने मुझे डॉलर आएंगे, और उन डॉलर्स का नेमल बदल है उषा अंसारी साहिबा का जो दिल दुखाया, वो डॉलर्स नेमल बदल है दिल दुखाने का जो मैंने इतना बड़ा जुर्म कर लिया। अब उन्होंने कहा मैं इतनी हर्ट हुई, आपको इस बात का मतलब पता है? अगर आप किसी को हर्ट करें, कोई हर्ट होता है, किसी का दिल दुखता है, तो जब तक वो बंदा आपको माफ नहीं कर देता, अल्लाह भी माफ नहीं करेंगे। किस भुल च रहिंदे हो तुसी, केड़ी भुल तुहानू है? मैं ऐसे हाथ करके जन्नत की खिड़की से ऐसे हाथ करके मैं कहूंगी आ जाओ, नो, ऐसे नहीं होता। ऐसे हाथ करके जन्नत में ऐसे जाके और हाथ करके अगले को जन्नत में नहीं खींच लेना। जन्नत में जाने की भी अल्लाह ताला ने कुछ असूल बना दिए हैं, कुछ चीज़ें बना दी हैं, कुछ चीज़ें रख दी हैं, कुछ काम रख दिए कि ये करोगे तो जन्नत में जाओगे। अब एक खातून का आप लोगों ने दिल दुखाया, वो चाहे कोई भी है, चाहे वो जुनैरा माहम है, तो एक साहब है समीर साहब, वो बड़े अच्छे व्लॉग करते हैं, मुझे वैसे वो बड़े पर्सनली बड़े पसंद है, बड़ी अच्छी वो करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी समीर साहब से कि वो भी इस तरह का कोई जो है वो काम कर लेंगे या इस तरह का कोई व्लॉग बना लेंगे। उन्होंने भी इस तरह की बात की तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, यकीन करें। और मैं बड़े दिनों से चाह रही थी इसमें व्लॉग बनाऊं और मैं ऐसे लोगों को कहूं कि आप लोग अभी वक्त है बुशरा साहिबा से माफ़ी मांग लें। जिन्होंने बनाए हैं इस तरह के व्लॉग डिलीट करते हैं, खुदा का वास्ता, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आखिरत अच्छी हो, क्योंकि हमने अल्लाह के हजूर तो खड़े होना ही होना है, ठीक है? अब इसके ऊपर लग जाएंगे फतवे, ए कित्थों आ गई है बड़ी मौलवियाँ, नी तो फलाना तो ढमकाना, इतनी बात हर एक को पता होती है, इतना हर एक ने दीन को जाना हुआ है कि अल्लाह ने उस बंदे को माफ़ नहीं करना उस वक्त तक जब तक मैंने जिसका दिल दुखाया है, जिसके साथ ज्यादती किया, जुल्म किया, जब तक वो मुझे माफ़ ना कर दे। ये भी जुल्म का एक हिस्सा है। तो हम सबसे पहली बात कि हम लोगों को ये क्या दिखा रहे हैं कि जी हमारी ऐसी तरबियत हुई है, हमारे माँ बाप ने, हमारे टीचर्स ने हमारी ऐसी तरबियत की है, ठीक है? फिर दूसरी बात ये कि हम चंद डॉलर्स के लिए ये करने को तैयार हो जाते हैं। अपने ही हम वतन, अपने ही मुल्क की इतनी प्यारी सी आर्टिस्ट, हम उसका ऐसे दिल दुखाएंगे और उसकी हमें परवाह भी नहीं है। मजे की बात ये कि हमें उसकी परवाह भी नहीं है, जो मर्जी कोई करे। मैंने कितनी दफ़ा बुशरा अब्बा से सुना है, कितनी दफ़ा मैं उनके व्लॉग देखती हूँ, जो उनका चैनल है बुशरा अंसारी ऑफिशियल, उसमें वो कितनी बार इस बात का जिक्र कर चुकी हैं। तो किसी को कोई दिल नहीं दुखता, किसी का जाके दिल में ये चीज़ लगती नहीं है कि यार मैंने ये क्या कर दिया है। मैं फ़ौरन एक व्लॉग बनाऊँ माफ़ी का, आई एम सो सॉरी, मेरे से गलती हो गई, ठीक है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, रिश्ते नहीं है, लेकिन गलती होगी तो उसकी माफ़ी मांग लें। अभी वक्त है, खुदा का वास्ता है, अभी वक्त है, अभी माफ़ी मांग ले मुशरा साहिबा से। वो बहुत नाइस लेडी है, बहुत अच्छी है। फनकार का दिल तो वैसे बड़ा नाजुक सा होता है। आप उनसे माफ़ी मांग लें और आप वो वाली वीडियोस डिलीट कर दें, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। खैर का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि पुलिस आगे फड़ के ले जाएगी या बुशरा साहिबा को उन्होंने क्या करना है। वो तो यही कह रही है कि मेरा बड़ा दिल दुखा, मैं बड़ी हर्ट हुई, मैं रो पड़ी, किसी की आंखों में आंसू देने हैं हमने, और वो भी इतनी प्यारी आर्टिस्ट के लिए ऐसी बातें, नो नो वे। मुशाबा, मैं बहुत दिल से आपको पसंद करती हूँ, आपकी इज़्ज़त करती हूँ। मैं तमाम ऐसे लोगों की बल्कि हर एक की हम पे इज़्ज़त करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इज़्ज़त करना सिखाया है। मैं जब बहुत छोटी थी, मुझे अच्छी तरह ये बात याद है कि एक दफ़ा शायद कोई माज़ूर शख्स था और वो घिसट के चल रहा था। शायद मैं 3 क्लास में थी। तो हम लड़कियाँ स्कूल से कहीं आ रही थी, जा रही थी, कुछ ऐसा का सीन था। तो कुछ लड़कियां उनको देख के उन्होंने मजाक उड़ाया, वो हंस पड़ी और मैं भी हंसी उनके बीच में ना। तो ये फिर बात जो है वो मेरी एक क्लास फेलो ने मेरी क्लास टीचर को बताई और फिर उन्होंने हमें इसके ऊपर पूरा एक बाकायदा लेक्चर दिया। वो दिन और आज का दिन पल्ले बांधी हुई है बात कि किसी के ऊपर हंसना नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो उसको अल्लाह ने बनाया, आपको भी अल्लाह ने बनाया, लेकिन अगर आपके हाथ पाँव ऐसे टूट जाए खुदा ना खास्ता और आप भी ऐसे घिसट घिसट के चले तो लोग आप पे हंसेंगे, अपने दिल का सोचेंगे क्या गुजरेगी आपके दिल के ऊपर। तो वो चीज़ें जो है ना वो फिर ऐसे कुछ दिल में वो खुप गई वो बातें, और आज तक इतनी बड़ी मैं हो गई हूँ, वो चीज़ें साथ लेके चलती हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, खुदा का वास्ता ना किया करें, ना बुशरा अंसारी साहिबा के लिए, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए।
किसी के लिए भी ऐसा मत करें। आप व्लॉग बनाएं, आप भी अच्छा कंटेंट लेके आए कोई, और अपने घर के यार व्लॉग बना लो, ऐना तो बहुत बेहतर है। होना वो है जो किस्मत में लिखा है, पैसा वो मिलना है, रिज़्क वो मिलना है, चीज़ें वो मिलनी है जो आपके नसीब में लिखा है। वक्त से पहले नहीं और किस्मत से ज़्यादा नहीं, ठीक है? जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है वही मिलना है। अब वो मुझे बड़ी प्यारी एक बात याद आती है। उस्मान भाई ने कहा कि मेरे कुलीग थे उस्मान भाई, उस्मान खालिद साहब, अगर मेरा व्लॉग सुने तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उस्मान भाई? तो उन्होंने कहा, मैं एक दफ़ा उनके साथ एक प्रोजेक्ट कर रही थी, तो कोई ऐसी बात हुई, तो मैंने पैसों का बात हुई, तो मैंने कहा देखिए ना, अभी किस्मत में लिखा होगा उसके में, तो वो गया ना, तो उसे हराम के पैसे जो है वो कमाए, अगर उसकी हराम की कमाई है तो उसे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात मुझे बताई। उन्होंने कहा देखिए, अल्लाह ने पैसे तो आपको वही देने जो आपके नसीब में लिख दिए हैं, मिलने आपको वही है, लेकिन टू वेज हैं आपके पास, एक राइट और एक लेफ्ट, एक शैतान का रास्ता और एक अल्लाह का रास्ता, दीन का रास्ता। अब ये डिपेंड बंदे के ऊपर करता है कि वो लेफ्ट जाता है या वो राइट जाता है। देखिए, इसी के लिए तो अल्लाह ने दुनिया बनाई है ना, राइट लेफ्ट, शैतान और इंसान, और ये सारी आजमाइश, और ये हम मुसलमानों के लिए है ना ये सारा कुछ। फिर हमारे लिए जन्नत और दोज़ख है, हमारे लिए ये सारे हिसाब किताब होंगे, ये हमने जाके अल्लाह के सामने जो है ये खड़े भी होना है, अल्लाह को सब कुछ बताना भी है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो जब नसीब में लिखा है मेरे, तो मैं हलाल को हराम क्यों करूं? बताएं, मैं क्यों वो काम करूं जिससे मेरा अल्लाह भी नाराज़ हो और खलकत भी नाराज़ हो, दुनिया भी नाराज़ हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे तमाम बहन भाइयों से कि खुदा का वास्ता अपनी आखिरत ख़राब ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये डॉलर्स, ये चैनल, ये मेरे 30 लाख और मेरे 50 लाख सब्सक्राइबर, और मैंने कोठी खरीद ली और मैंने फलाना ले लिया, इधर ही रह जाना है। मुझे बताएं क्या गया कब्र में इतने बड़े बड़े बादशाहों के? कानून से ज्यादा खजाना किसी का था नहीं, की लेके गया? कुछ नहीं लेके गया ना। ते खाली दो हाथ मेरे भी नान जाने ने। आखिरत की तैयारी करें, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप रोटी भी ना खाएं, कपड़े भी ना पहने और फकीरों की तरह जिंदगी गुजारें। अल्लाह ने जो दिया वो अपने ऊपर भी खर्च करें, अल्लाह के बंदों के ऊपर भी खर्च करें। अल्लाह ने जो ज़बान दी है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, किसी का दिल मत दिखाएं, चवल लोगों जैसी हरकत मत करें। मत ऐसी हरकत करें कि लोग कहें यार क्या चवल औरत है, यार क्या चवल लोग हैं, ऐसी बात कोई आपको कह दे, तो वो बस आपके कैरेक्टर का जो एक एक बना होता है ना, बंदे के सामने एक मीनार बना होता है, धड़ाम से गिर जाता है कानों में। अब 3 औरतें बैठी हैं, 2 औरतें आहिस्ता आहिस्ता कानों में बात कर रही हैं और तीसरी बैठी हुई वो खुद को मुजरिम समझ रही है। तो नॉट फेयर। वो जो एक बना हुआ था ना एक कैरेक्टर का एक बड़ा खूबसूरत सा मीनार, वो धड़ाम से गिर जाता है, ठीक है? किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने वाले आप कौन होते हैं, हम कौन होते हैं? अपना अपना कैरेक्टर देखा है हमने? मैंने खुद देखे कि मैं कितनी गुनाहगार हूँ, मैंने कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ की हैं, मैं किसी से माफ़ी मांगूँ, मैंने किसी के साथ क्या क्या किया है। नहीं हम इस बात पे इतना गौर करते, तो ये इंतहाई गलत बात है। तो इतनी प्यारी शख्सियत बुशरा आपा, सच में मेरा जब वो ईसा की बात करती है ना, वो कहती हैं कि ईसा मुझे हर्ट किया और मेरा इतना दिल दुखा, मेरा दिल चाहता है मैं बुशरा आपा को गले से लगा लूँ, इतना प्यार करूँ मेरे को। नहीं बुशरा आपा, आप ईसा से परेशान नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। ये चंद लोग हैं, वो भी अच्छे लोग हैं, खुद अच्छे लोग हैं, गलती हो गई उनसे, तो आप उनसे माफ़ी मांग लें और आइंदा के लिए कोई भी प्लीज़ किसी के लिए भी, और ख़ास तौर पर मुशाफिर के लिए ऐसा व्लॉग मत बनाएं। ये उनकी ज़िंदगी है, वो चाहे उसको जैसे मर्जी गुजारे, ठीक है जी। अब उनकी ज़िंदगी में इस तरह का आ गया, सीन हो गया, नहीं उनकी उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी अपने हस्बैंड, पहले हस्बैंड के साथ, दूसरी शादी कर ली। भाई हम कोई ठेकेदार हैं किसी की ज़िंदगियों के फैसले करने वाले, या इस तरह की बातें करने वाले, या उन्होंने मुझसे या आपसे पूछ के शादी कर दी थी, तो उनकी पर्सनल है। अब देखिए जी, मैं इमरान खान को लाइक नहीं करती, ठीक है, उनकी कुछ हरकतों की वजह से, लेकिन मैंने कभी भी, जब उन्होंने रेहान खान के साथ शादी की, जब उन्होंने ये बुशरा के साथ शादी की, मैंने कभी भी उनके ये जो लोग, जो सहाफ़ी लोग या ये इस तरह उनकी बातें इस तरह की करते थे, तो मैं तब भी यही कहती थी कि बेशक मैं उस शख्सियत को पसंद नहीं करती, मैं नहीं हूँ तहरीक इंसाफ की पार्टी में, लेकिन ये इंतहाई गलत बात है। क्यों कोई किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करे, क्यों कोई किसी की बात बनाए, नहीं करनी चाहिए, नहीं कोई इस तरह की चीज़ें टीवी पर देनी चाहिए। तो ये तो हमारी इतनी प्यारी सी, इतनी मासूम सी फनकारा है, इतना कहते हैं, इतना प्यारा छोटा सा बच्चा है जो हर आंख को शायद नज़र ना आता हो, मुझे नज़र आता है। तो क्यों इस तरह से आप लोग करते
कहते हैं प्लीज़ अब ऐसा ना करें। और मुशा अंसारी साहिबा, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपको जो है, मैं सारे व्लॉग देखती हूँ आपके, और मेरे से एक सजेशन है, शगुफ्ता शगुफ्ता से ज़रा व्लॉग बनाया करें, सीरियस ना हुआ करें आप। हमें हमें आदत होगी आपको खुश अखलाकी में देखते हुए ना, तो खुश अखलाकी नहीं, सॉरी, हंसते हुए, मजाक करते हुए, तो हम शायद एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें ऐसा ही देंगे ना प्रोग्राम। तो वो गवांडे ने खासतौर पे इंडिया में तो बहुत ही देखा गया, ठीक है जी, वो इतना प्यारा है, मैं अक्सर वो देखती हूँ, गवांडे मुझे बड़ा पसंद है। अक्सर मैं और मेरी बहन और हम सारे मतलब बड़ा लाइक करते हैं, अच्छा लगता है। और मैं कभी इस तरह हो रहा तो मैं कहती हूँ चलिए जी मूड खुशगवार कर लेते हैं, तो गवांडे लगा लेते हैं तो मेरी जो है रिक्वेस्ट पे अमल किया जाए, कोई ट्रोल ना करे, मेरी छोटी सी ऑडियंस है, छोटी सी एक मेरी दुनिया है, चंद लोग मुझे देखते हैं, लेकिन इस व्लॉग के लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात जाए, और शायद उन लोगों तक भी बात मेरी पहुंच जाए कि जिन्होंने ये व्लॉग बनाया इस तरह का और उनका दिल दुखा, वो सॉरी कर ले और ख़त्म कर दे इस चीज़ को और डिलीट कर दे उस व्लॉग को। तो जनाब जी, बातें तो बहुत सारी हैं करने की, बहुत सारी है, लेकिन बस लंबा हो रहा है काफ़ी सारा, बड़ा जब बोलने लगे तो फिर बहुत सारी बातों से बातें निकल आती हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जो है मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। मुशा साहिबा को मेरा बहुत 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 अस्सलाम वालेकुम, और आज कमेंट करूँगी मैं उनको, या अपने व्लॉग का भी बताऊँगी कि वो भी देखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।